Good morning, everyone. Myself, Keval Kelawala, I'm serving as a startup mentor and program manager at Ignite. Today's the session is all about IPR, intellectual property rights, where our speaker Dhruv Patel will talk about what are patents, what are the types of patent, what is the benefit of it, and how you can go for your patent. Ignite is an incubator and innovation and startup center of the Silver Oak University. Ignite helps startups to bridge and connect them to the different government assistance schemes. Ignite have mainly two government assistance scheme. One is the SSIP, Student Startup Innovation Policy, where we can provide you up to 2 lakh rupees for the proof of concept development and prototype development. And additionally, we can give you a support of rupees 25,000 rupees for the IPR and patent rights. Another scheme which we have is Startup Gujarat by Industry Commissioner SAS scheme for assistance of startup, where we can provide 30 lakh rupees support for product development and marketing. Ignite has a 7th position out of 146 institute in Gujarat according to SSIP ranking. Till now, Ignite have supported 70 plus startups, sensitized more than 15,000 students. Ignite have a 60 plus mentors on board for the different from different background, where if any startup or any students need any kind of support from industry, we are here to provide. uh, from 2016, Ignite has initiated more than 50 plus event and disbursed a funding of rupees more than 1.3 crores. Uh, and as this session is all about patents, so Ignite have patented more than 80 plus patent under the program of Illuminate Your Rights of Intellectual Property. So today our speaker, our speaker, Mr. Dhruv Patel, is from IIPHG. IIPHG Nidhi TBI is developed under Indian Institute of Public Health Gandhinagar University with the vision to nurture startups economy in the public health and healthcare domain. IIPHG Nidhi TBI for Public Health Gandhinagar aims to create a startup ecosystem to encourage linkages between doctors, clinicians, scientists, health workers, technologists, entrepreneurs, and investors to foster a technology driven entrepreneurship in the field of public health. Uh, and a little bit about our today's speaker, Mr. Dhruv Patel. He has pursued his master's in mechanical engineering and then he pursued his PG diploma course in IPR. He has filed 6 patents and from which he has received approval for all 6 with the 100% grant ratio. And previously, before IIPHG, Dhruv was associated with Ignite only, and under his guidance and mentorship, our students have filed more than 80 plus patents, and from which more than 76 patent has already been again approved. So that is a very fantastic ratio. Now I will request our speaker Dhruv Patel to start the session and brief everyone about patent and let's over to you, Dhruv Patel, now.
Dhruv, you are not audible. Dhruv, your voice is not coming. Hello, am I audible Yeah, now? yeah, you are audible now. Okay, thank you, Keval. So good morning all. Welcome in today's session and thanks for joining in our today's session where I will explain a little bit about the IPR with the all the type of IPR, and I hope I will deliver my session as my best knowledge. So let's start today's session. Uh, so Okay. So today's disclaimer is that the material and information contained in this presentation is for general information and awareness purpose only. It's intent for the educational purpose only, and it does not replace independent professional judgments. So let's start begin with the disclaimer, and my presentation language will be Hindi and English both. So these are the outline for today's presentation where I will start with the type of properties, the overall general background about IPR, then IP portfolio, then IP evaluation. Then I will cover patent, copyright, trademark, and industrial design with the example and the flow. So what do you mean by type property? So कई बार ऐसे लोगों को कहते हुए सुना होगा आपने कि प्रॉपर्टी क्या है। मेरे पापा के पास बहुत प्रॉपर्टी है, मेरे पास बहुत प्रॉपर्टी है। व्हाट डू यू मीन बाय प्रॉपर्टी? सो लोग बोलते हैं मेरे पास जमीन है, ज्यादा गोल्ड है, कैश है। सो दीज ऑल आर द टेंजिबल प्रॉपर्टीज। कई बार आपने कभी आपने नोटिस नहीं किया होगा कि कोई ऐसा बोल रहा है कि मेरे पास आइडियाज है, मेरे पास इनटेंजिबल प्रॉपर्टी है। बट yes, in today's era, intangible property. Hello, Keval, can you confirm that I am audible properly? Because I have received a message in chat that my voice is not clear. No, you are clearly audible to us. Okay, okay, thanks. So intangible properties भी होता है जहाँ पे आपका आइडिया होता है, आपका कुछ ह्यूमन इंटैक्ट होता है। सो अब ये इंटेंजिबल प्रॉपर्टी अभी क्यों इतना ज्यादा फोकस में है? बिकॉज आप लोगों ने कभी नोटिस किया होगा कि कोई भी कंपनी है, कोई भी स्टार्टअप है जहाँ पे आइडियाज पे ज्यादा फोकस किया जाता है। आप कुछ नया आइडिया लेके आए, चलो ये नया करते हैं। सो दोज आर इंटेंजिबल प्रॉपर्टीज। So these are the example in pictorial format that gold, land, your car, your mobile, your laptop. Those are the tangible properties जब आपको फील कर सकते हो, मेजर कर सकते हो, जो tangible properties है। What is intangible property? Your ideas, your human creation is intangible properties. Now, as I already mentioned, क्यों intangible properties अभी यहाँ पे हम लोग फोकस कर रहे हैं? बिकॉज आपने ये मेजर किया होगा कि
तो 1 decade ago और 2 decade ago इंडस्ट्रियल एज था और अभी डिजिटल एज है, आईटी का जमाना है, लोग बोल रहे हैं आईटी का जमाना है। सो क्या होता है, सो वेयर इंडस्ट्रियल एज पे वो लोग टेंजिबल प्रॉपर्टीज पे ज्यादा फोकस करते थे। कोई एक चीज बना दिया, इंडस्ट्री में बेच दिया, उसका मास प्रोडक्शन चलता रहता है, उसमें कुछ नया नहीं आता। Now, in the current age, in the digital age, you can measure that tangible property plus intangible property both are the assets of company, because यहाँ पे मास कस्टमाइजेशन होता है, मास वैरायटीज पे लोग ज्यादा फोकस करते हैं। ये एक और सिंपल एग्जांपल से आपको समझाता हूँ मैं। एक मोबाइल आप ले लो, आज आपने मोबाइल परचेस किया है, 1 साल 1.5 साल के बाद आपको ऐसा लगेगा कि ये तो पुराना मोबाइल है, अभी तो काफी एडवांस टेक्नोलॉजी आ चुकी है। सो 1 और 2 ईयर में कितना चेंज आप फील कर सकते हो, दैट्स ऑल डिपेंड्स ऑन द इंटेंजिबल प्रॉपर्टीज। नाउ लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज मेन टॉपिक, आईपीआर। सो आईपीआर क्या है? So intellectual property is a category of property that includes intense creation of human intellect, or the most well properties are copyright, patent, trademark, design and trade secret. Now, uh, why intellectual property rights क्यों है? क्योंकि आपने एक मोबाइल खरीदा है जो आपकी टेंजिबल प्रॉपर्टीज है। आप कैसे डिफाइन करोगे कि वो आपका मोबाइल है? बिल होगा आपके पास, आपका हाउस है, आप कैसे बोलोगे कि ये मेरा घर है? उसके कुछ डॉक्यूमेंट्स, रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट्स हो गए। सो दोज टेंजिबल प्रॉपर्टीज हैव समथिंग दैट यू कैन कॉल दैट इट इज माय प्रॉपर्टी। नाउ आपका कुछ आइडिया है, तो आप कैसे बताओगे कि ये मेरा आइडिया था? कौन मानेगा आपकी बात कि ये आपका आइडिया था? लोग तो बोलेंगे कि नहीं नहीं ये तो मेरा आइडिया था, भले ही आपने उस उन्होंने आपसे कॉपी कर लिया है। So the protection, the rights given by the government on your intellectual property, your things, it's all about intellectual property rights. So उसके लिए कुछ लॉज है, जिसके लॉ के अकॉर्डिंग आपको कुछ ना कुछ राइट्स मिलते रहते हैं। आपका थिंग्स क्या है, कॉपीराइट है, पेटेंट है, ट्रेडमार्क है। सो ऑल दीज कवर्ड अंडर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। नाउ आईपी पोर्टफोलियो। सो काफी सारे लोगों को ये दिमाग में रहता है कि मेरे पास एक चीज है, तो मैं उसको क्या अलग अलग आईपी पे कर सकता हूँ प्रोटेक्शन? यस। सो ये एक एग्जांपल कवर किया हुआ है मैंने, सिप्ला मल्टी हेलर। सो जो सिप्ला मल्टी हेलर है उसके ऊपर उन्होंने ट्रेडमार्क फाइल किया हुआ है, उनका आइडेंटिटी। नाउ ये जो आपको कुछ लुक दिख रहा है, कुछ चीज दिख रही है, उसका क्या लुक है, क्या शेप है, उसके ऊपर डिजाइन प्रोटेक्शन लिया हुआ है। सो यहाँ पे मैंने डिजाइन नंबर्स भी मेंशन किए हुए हैं। सो अभी ये कैसे वर्क करता है, क्या फंक्शनैलिटी है, उसके नोवेल फीचर्स पे पेटेंट लिया हुआ है। सेम उसका पैकेजिंग है, उसका इंफॉर्मेशन लिफलेट है। आप कभी कभी भी कुछ परचेज करते हो तो उसके अंदर से कुछ इंफॉर्मेशन लिफलेट निकलता है। दोज ऑल आर कवर्ड अंडर कॉपीराइट। एंड उसको कैसे बनाना है, उसका कुछ भी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है जिसको डिस्क्लोज नहीं करना चाहते हैं, वो ट्रेड सीक्रेट के अंडर कवर करते हैं। सो ये स्लाइड का मेन पर्पस ये है कि एक चीज में कैसे एक वेराइटी ऑफ आईपीस कवर होता है, एक ही कोई मॉडल पे कैसे अलग अलग आईपी ले सकते हैं, प्रोटेक्ट कर सकते हैं। नाउ लेट्स बिगिन विद द पेटेंट फर्स्ट। नाउ काफी सारे लोग होंगे जो पार्टिसिपेंट्स में जिनको कुछ ना कुछ आइडिया होगा कि पेटेंट क्या है, मैंने कुछ नया बना दिया है, उसके ऊपर मेरे को प्रोटेक्शन मिलता है, गवर्नमेंट मेरे को प्रोटेक्शन देती है। सो नाउ आई विल ब्रीफ अबाउट द पेटेंट। व्हाट इज पेटेंट, किस पे पेटेंट मिलता है? तो पेटेंट इज एक्सक्लूसिव राइट ग्रांटेड बाय गवर्नमेंट टू इन्वेंटर। जिसने इन्वेंट किया है उसको एक्सक्लूसिव राइट मिलता है, किसके लिए? मैन्युफैक्चरिंग, यूज, डिस्ट्रीब्यूशन और सेल। बनाने के लिए, बेचने के लिए, डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए या उसको यूज करने के लिए सर्टेन नंबर ऑफ ईयर्स। सर्टेन नंबर ऑफ ईयर्स क्या है? सो पेटेंट पे आपको 20 ईयर्स का राइट्स मिलता है। 20 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग, फर्स्ट फाइलिंग डेट ने जब से फाइल किया है वहां से नंबर ऑफ ईयर 20 है प्रोटेक्शन के लिए। अब
कभी क्वेरी आती है कि 4 साल के बाद मेरा ग्रांट हुआ, 5 साल के बाद पेटेंट ग्रांट हुआ। सो ग्रांट के बाद 20 इयर्स नहीं मिलेगा, फाइलिंग डेट से आपको 20 ईयर का प्रोटेक्शन मिलेगा। ओके, now the next definition is new way of doing something or offers a new technical solution to problem. So आप कुछ एग्जिस्टिंग चीज है उसमें कुछ टेक्निकल एडवांसमेंट कर रहे हो, कुछ नॉवेल फीचर्स ऐड कर रहे हो, कुछ नया आउटपुट मिल रहा है, सो उसके ऊपर आप पेटेंट करवा सकते हो। एज आई ऑलरेडी मेंशन कि किसके ऊपर राइट्स मिलता है, मेड यूज डिस्ट्रीब्यूशन सोल्ड, किसके लिए राइट्स मिलता है, सॉरी, सो मेड यूज डिस्ट्रीब्यूशन सोल्ड आप तो कर सकते हो, लेकिन आपकी परमिशन के बिना कोई और नहीं कर सकता। सो द पेटेंट राइट्स ये नहीं है कि आप खुद कर सकते हो, ये सब आपकी परमिशन के बिना और कोई नहीं कर सकता, ये है पेटेंट राइट्स। नाउ पेटेंट किस पे मिलता है? कई बार मैंने नोटिस किया है कि कोई स्टूडेंट्स है या कोई स्टार्टअप्स है या इनोवेटर है, कुछ थोड़ा सा नया कर दिया है और बोल रहे हैं कि मेरे को पेटेंट चाहिए, ये मेरा नया है, ये कुछ मैंने खुद नया डेवलप किया है। सो नहीं, ऐसे पेटेंट नहीं मिलेगा। पेटेंट के लिए 3 क्राइटेरियाज है, 3 प्रिंसिपल्स है, जिसको पेटेंटेबिलिटी क्राइटेरिया बोलते हैं, जो फॉलो करना आपके लिए कंपलसरी है। द फर्स्ट वन इज इनोवेटिवनेस, जिसको नॉवेल्टी बोलते हैं। नेक्स्ट वन इज इन्वेंटिव स्टेप, जो नॉन ऑब्वियसनेस है। थर्ड वन इज इंडस्ट्रियल यूटिलिटी, कि उसका कुछ इंडस्ट्रियल यूजफुलनेस होना चाहिए। नाउ ये इंडिविजुअली ये क्या है, वो मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में थोड़ा डिटेल्स में बताऊंगा। नाउ जो स्टूडेंट है या जो भी इनोवेटर है, अगर आपको कुछ फाइल करना है पेटेंट, या आप अभी सोच रहे हो या बाद में सोच रहे हो, दीज आर द मेन क्राइटेरिया टू फाइलिंग पेटेंट। सो ये आप थोड़ा ध्यान से देख लेना कि आपके इन्वेंशन पे ये फुलफिल हो रहा है कि नहीं। नाउ फर्स्ट वन इज व्हाट इज इन्वेंशन, तो व्हाट इज नोवेल्टी, अ न्यू प्रोडक्ट और प्रोसेस। सो एक इंडिया में है जिसपे पेटेंट प्रोडक्ट पेटेंट भी मिलता है, प्रोसेस पेटेंट भी मिलता है। Now, new product or new process involving inventive step or capable of industrial application. So, अब ये new product, new process क्या है? So, for example, आप कोई A चीज बना रहे हो, इंक्लूडिंग B, C और D। अभी आपका आउटपुट क्या है? A है, और A फॉर एग्जाम्पल आप कंसिडर कर लो, A मीन्स आपका मोबाइल है। आपका मोबाइल कोई ए बी सी डी से कॉम्बिनेशन से बन रहा है, आपने कुछ नया ई ऐड किया उसमें, जो अभी तक किसी ने नहीं किया है, कॉम्बिनेशन ऑफ बी सी डी ई या फिर बी सी ई, और उससे कुछ नया जनरेट होता है, कुछ नया आउटपुट जनरेट होता है। दोज आर योर नोवेल फीचर्स। नाउ व्हाट इज इन्वेंटिव स्टेप, द टेक्निकल एडवांसमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग नॉलेज। आपका कुछ भी एग्जिस्टिंग में है, उसमें कुछ आप नया टेक्निकल एडवांसमेंट ला रहे हो जो इकोनॉमिकल सिग्निफिकेंस है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि ऑलरेडी कोई एक चीज है, मैं उसको बना रहा हूँ और 10,000 की जगह मैं 9,000 या 8,000 में बना रहा हूँ। दैट इज नॉट इकोनॉमिकल सिग्निफिकेंस। इकोनॉमिकल सिग्निफिकेंस मीन्स कुछ आपका ज्यादा डिफरेंस होना चाहिए, कुछ अच्छा सा इकोनॉमिकल सिग्निफिकेंस डिफरेंस आना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल एक आपका मैं दवाई का एग्जांपल ले लूं। सो कोई एक कैंसर ड्रग है, जो कैंसर ड्रग मिलता है, एक 10 कैप्सूल का जो पैकेट है वो मिलता है मेरे को 50,000 में। मैंने उसको बना दिया है 10,000 में, जेनरेटिक दवाई आप जो बोल सकते हो। सो मैंने उसको 10,000 में बना दिया। तो those are cover under economical significance. Okay, and I hope you understand the technical advancement very well. Now, what is capable of industrial application? So in a relation of invention, it means that invention is capable of being made or used in industry. कुछ इंडस्ट्री का इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए जहां पर उसको बना सके, किसी को यूज कर सके। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका कुछ आइडिया है बट बना ही नहीं सकते हम लोग। ओके, नाउ व्हाट डू यू पोजेस पेटेंटेबल इन्वेंशन? नाउ व्हाट आर द रूल्स वी फॉलो? So we एज एन इंडियन
पेटेंट ऑफिस फॉलो द फर्स्ट टू फाइल रूल। फर्स्ट टू फाइल रूल क्या है, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि दो रूल थे। फर्स्ट वन इज फर्स्ट टू इन्वेंट रूल, जो यूएसए में पहले फॉलो होता था, अब वो उन लोगों ने फर्स्ट टू फाइल रूल पे स्विच कर दिया है। तो फर्स्ट टू इन्वेंट रूल क्या था, जिन्होंने इन्वेंट किया है वो पेटेंट के लिए उनको ग्रांट मिलेगा। नाउ फर्स्ट टू फाइल रूल क्या है, जिन्होंने पहले फाइल कर दिया है, जिसने पहले फाइल किया उसको पेटेंट के लिए राइट्स मिलेगा। नाउ कभी ऐसा होता है कि आप कुछ बना रहे हो, आप कोई प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहे हो और आप सोच रहे हो कि ये कंप्लीट हो जाने के बाद मैं उसको फाइल करूंगा, 1 साल लगेगा शायद, और उसके पहले किसी और ने कुछ ऐसा बना के फाइल कर दिया है, तो आपका वो जो होगा कि मैं बनाने के बाद फाइल करूंगा, वो यहाँ पे काउंट नहीं होगा, क्योंकि फर्स्ट फाइल किसी और ने कर दिया है ऑलरेडी वो चीज। यहाँ पे और भी लिखा है कि डोंट टू पब्लिश पेपर गिव इन न्यूज़पेपर रिपोर्ट वीडियो अपलोड ऑन इंटरनेट सोशल मीडिया पोस्ट, सब ये सब क्या है। एक ये है कि आपका अगर पेटेंट फाइल किया करना है तो अनपब्लिश्ड वर्क पे पेटेंट फाइल करना पड़ेगा। अनपब्लिश्ड वर्क मतलब आपका भले ही खुद का वर्क है, बट वो कहीं और प्रायर एग्जिस्टिंग नॉलेज में नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसका ऑलरेडी रिसर्च पेपर है, या उसका कहीं पे लाइब्रेरी में उसका रिपोर्ट है, या न्यूज़पेपर में कहीं आ गया है, आपने वीडियो बना के यूट्यूब में डाल दिया है, या फेसबुक में या इंस्टाग्राम में आपने ही कर दिया है उसका प्रमोशन पहले से। सो अनपब्लिश्ड वर्क पे पेटेंट मिलेगा। ओके, सो अगर पहले आपको पेटेंट फाइल करना रहेगा देन यू हैव टू पब्लिश एनीवेयर। नाउ ये क्लियर हो गया कि पेटेंट किस पे मिलता है, किसके बेस पे मिलता है, उसका क्राइटेरिया क्या है। अब आपको ऐसा है कि नहीं, ये सब तो फिल हो गया मेरा, ये क्राइटेरिया मेरा मैच हो रहा है, मेरे को पेटेंट फाइल करना है। तो पेटेंट फाइल करने के लिए क्या चाहिए होगा आपको, फर्स्ट टाइटल ऑफ इन्वेंशन, second summary of invention, the third one is I forgot to mention here, background of invention. Now what is background of invention, that what is available in existing, उसके जो आपका इन्वेंशन है, इनोवेशन है, उसके रिलेटेड में मार्केट में एग्जिस्टिंग क्या है, बैकग्राउंड क्या है। सो दोज आर इन बैकग्राउंड ऑफ इन्वेंशन। डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ इन्वेंशन, नाउ आपका जो भी इन्वेंशन है उसका डिटेल्ड में डिस्क्रिप्शन देना रहेगा विथ ऑल दी details. Now what is material, what is size, how can be made. So, एक फॉर एग्जाम्पल एक सिंपल लैंग्वेज में मैं बताऊं, मैं आपकी फील्ड का बंदा नहीं हूँ, या मैं टेक्निकल बंदा हूँ बट मैं ये फील्ड का नहीं हूँ, फिर भी मेरे को आपका डिटेल डिस्क्रिप्शन पढ़ के समझ में आ जाना चाहिए कि इन्वेंशन क्या है, वो उतना डिटेल्ड में डिस्क्रिप्शन देना रहेगा। नाउ क्लेम्स, क्लेम्स में मैंने लिखा है मे और मे नॉट बी रिक्वायर, क्यों, क्योंकि प्रोविजनल पेटेंट फाइल करना है तो क्लेम्स रिक्वायर नहीं है, कंप्लीट पेटेंट फाइल करना है तो क्लेम्स रिक्वायरमेंट है। नाउ व्हाट नेक्स्ट, एब्स्ट्रैक्ट फिगर्स, अगर कोई फिगर्स है तो नेम ऑफ इन्वेंटर, नेम ऑफ एप्लीकेंट। ओके, नाउ एक और ध्यान रखने जैसी चीज है, अगर आपने क्लेम्स, क्लेम्स इज योर हार्ट ऑफ पेटेंट, मतलब क्लेम्स में जो भी लिखा है उसके ऊपर आपको प्रोटेक्शन मिलेगा। अगर ऐसा कुछ है, आपने कुछ नया किया है, डिस्क्रिप्शन में दिखाया है बट क्लेम में कवर नहीं किया, तो वो आपका पेटेंट पे कवर नहीं होगा, उसके ऊपर पेटेंट नहीं मिलेगा। नेक्स्ट, नेक्स्ट चीज, एक और चीज ध्यान में रखने जैसी है कि अगर आपने क्लेम्स में मेंशन किया है बट डिटेल डिस्क्रिप्शन में मेंशन नहीं किया है, सो वहां पे भी एक क्वेरी आ सकती है कि आपने जो भी क्लेम में मेंशन किया है उसको डिटेल डिस्क्रिप्शन में मेंशन करना कंपलसरी जरूरी है। ओके, नाउ व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन इन्वेंटर्स एंड एप्लीकेंट्स। सो in many cases it is possible that the invention and applicant both are the same, बट इन्वेंटर कौन होता है, जिसने कुछ इन्वेंट किया है, एप्लीकेंट कौन होता है, जो फाइल कर रहा है। अभी ये डिफरेंस कैसे पता चलेगा, फॉर एग्जाम्पल आई एम अ रिसर्चर,
मैं कोई साइंटिस्ट हूँ, रिसर्चर हूँ, और मैं कोई एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए वर्क कर रहा हूँ जहाँ पे हम लोग कुछ इन्वेंट कर रहे हैं, बीइंग अ एम्प्लॉय, मैं एज ए एम्प्लॉय जॉब कर रहा हूँ। तो और मैंने कुछ नया इन्वेंट किया विद दी under limit of my premises or under the limit of my employment. So where I am the inventor and my company is applicant. Okay. Now ये सब आगे का डॉक्यूमेंट्स तो हो गया प्रिपेयर, और उसको फॉर्मेट कैसे करोगे और कौन से फॉर्म्स रिक्वायरमेंट है पेटेंट फाइलिंग के लिए। तो फॉर्म 1, 2, 3, 5 ये कंपलसरी रिक्वायरमेंट में है, मैंडेटरी है। फॉर्म 9 ऑप्शनल है, जहां पे आपको अर्ली पब्लिकेशन के लिए मिलता है। फॉर्म 18 रिक्वेस्ट फॉर एग्जामिनेशन। फॉर्म 26 पेटर्न ऑफ अटर्नी, आपने कुछ अटर्नी रखा है, आपने किसी और को राइट्स दिया है, आपका आप ऑन बिहाफ ऑफ यू, देन इट्स अंडर फॉर्म 26। नाउ फॉर्म 1 क्या है? एप्लीकेशन फॉर ग्रांट ऑफ पेटेंट, जिसमें आपका बेसिक डिटेल्स कवर होता है, इन्वेंशन का नाम है, आपका एड्रेस है, आपका क्लासेस है, वो सब फॉर्म 1 में कवर होता है। नाउ फॉर्म 2 में क्या कवर होता है? प्रोविजनल स्पेसिफिकेशन या कंप्लीट स्पेसिफिकेशन, एंड these all the documents are covered under form 2। अब फॉर्म 3 क्या है? आपको रिगार्डिंग फॉरेन फाइलिंग, आपको वहां पे आप मेंशन करना रहेगा कि आपको फॉरेन फाइलिंग के लिए जाना है, नहीं जाना है। सो फॉर्म 3 हो गया। फॉर्म 5 है इन्वेंटरशिप डिक्लेरेशन। जैसे मैंने आपको बताया कि इन्वेंटर और एप्लीकेंट कई बार अलग अलग होते हैं, सो इन्वेंटरशिप डिक्लेरेशन का फॉर्म आपको सबमिट करना रहेगा। नाउ फॉर्म 9 क्या है? रिक्वेस्ट फॉर अर्ली पब्लिकेशन। सो टाइमलाइन में हम लोग नेक्स्ट देखेंगे कि पब्लिश होने में 18 मंथ का टाइम लगता है। नाउ अगर आपको अर्ली पब्लिश करना है विद इन 1 मंथ 2 मंथ के क्राइटेरिया में, सो आपको फॉर्म 9 सबमिट करना रहेगा कुछ एडिशनल फीस के साथ, जहाँ पे आपका अर्ली पब्लिकेशन होगा, योर टाइम विल बी रिड्यूस्ड। नाउ फॉर्म 18 रिक्वेस्ट फॉर एग्जामिनेशन, भी काफी सारे यहाँ पे स्टूडेंट्स भी ज्वाइन हुए हैं जिन लोगों को ऐसा है, मतलब ऐसा हो सकता है कि हमने कुछ एग्जाम दिया, हमने पेपर सबमिट तो कर दिया, फिर वो टीचर तो खुद ना खुद एग्जामिनेशन तो करेगा ही ना, चेक तो करेगा ही ना। नहीं, पेटेंट में आपको एग्जामिनेशन रिक्वेस्ट सबमिट करना पड़ता है। वो आप फर्स्ट फाइलिंग के साथ भी कर सकते हो, फर्स्ट डॉक्यूमेंट्स के साथ भी कर सकते हो। आइदर आप फॉर्म 9 अर्ली पब्लिकेशन सबमिट कर दिया, आपका पब्लिश हो गया, पब्लिश होने के बाद भी आप एग्जामिनेशन रिपोर्ट सबमिट कर सकते हो कि हाँ मेरा पब्लिश हो गया है, नाउ हम लोगों को एग्जामिनेशन के लिए जाना है। ओके। और फॉर्म 26 मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया। सो दीज आर द फॉर्म्स। नाउ टाइमलाइन क्या है? फर्स्ट मैंने कुछ फाइल किया, एप्लीकेशन किया, वहां से 18 मंथ के अंदर पब्लिश होगा। अगर फॉर्म 9 सबमिट किया है तो अर्ली पब्लिश हो जाएगा। नाउ रिक्वेस्ट फॉर एग्जामिनेशन फॉर्म 18 कब तक फाइल कर सकते हैं? 48 मंथ के टाइम पीरियड तक आप रिक्वेस्ट फॉर एग्जामिनेशन सबमिट कर सकते हो। जैसे मैंने आपको बताया, एप्लीकेशन के साथ भी कर सकते हो, पब्लिकेशन के बाद भी, एंड विद इन 48 मंथ। नाउ रिक्वेस्ट फॉर एग्जामिनेशन के बाद आपका एप्लीकेशन एग्जामिन होगा, उसका फर्स्ट एग्जामिनेशन रिपोर्ट जनरेट होगा, उसको आपको विद इन अ प्रिस्क्राइब टाइम पीरियड 3 मंथ 6 मंथ, जो भी आपको टाइम पीरियड दिया है एग्जामिनेशन रिपोर्ट में, वो आपको वहां पे रिस्पॉन्स सबमिट करना है। रिस्पॉन्स के बेसिस पे आगे प्रोसेस होगा। यहाँ क्लियर है पॉइंट्स आपके तो ग्रांट होगा पेटेंट, क्लियर नहीं है तो सेकंड एग्जामिनेशन रिपोर्ट आ सकता है या हियरिंग के लिए भी जा सकता है। एंड अगर ग्रांट हो गया तो इश्यू ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ पेटेंट, आपका सर्टिफिकेट इश्यू होगा पेटेंट का। अगेन आपका जो भी 20 ईयर का प्रोटेक्शन है फ्रॉम दी स्टार्ट होगा, फ्रॉम दी स्टार्ट, नॉट फ्रॉम दी ग्रांट। ओके। नाउ फीस क्या है? कभी कहीं बार मैंने ये सुना है स्टूडेंट से या कोई स्टार्टअप से, ये मेंटालिटी रहती है कि पेटेंट फाइल करने के लिए तो बहुत पैसे लगते हैं। नहीं नहीं नहीं। तो सो ये फीस है आपका, जो 3 कैटेगरी में डिवाइड है। द फर्स्ट वन इज नेचुरल पर्सन, द सेकंड वन इज स्मॉल एंटिटी, द थर्ड वन इज लीगल एंटिटी और लार्ज कंपनी। सो
क्या मैंडेटरी है? एप्लीकेशन फॉर ग्रांट ऑफ पेटेंट, जो फॉर्म 1 के साथ आपका जाएगा फीस 1600 है, ये ऑनलाइन फाइलिंग फीस है। ऑफलाइन फाइलिंग फीस के लिए 10% इंक्रीज होता है। सो 1600 रुपीज है फॉर द फॉर्म 1। अर्ली पब्लिकेशन करना है आपको फॉर्म 9 के साथ, 2500 का फीस ज्यादा लगेगा जो ऑप्शनल में है। रिक्वेस्ट फॉर एग्जामिनेशन फॉर्म 18 के साथ 4000 रुपीज मैंडेटरी में है। नाउ अभी आपने जो डॉक्यूमेंट्स रेडी किया है उसको 30 सीट्स के ज्यादा जा रहा है आपका, तो अबाउट द 30 सीट पर सीट 160 रुपीज एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा। एंड अगर आपने क्लेम्स लिखा है, सो जो भी टोटल 10 क्लेम्स आपको ये फॉर्म 1 के अंडर फ्री मिलेंगे। अगर आपके क्लेम्स 10 के अबोव जा रहे हैं, सो ईच क्लेम यू हैव टू सबमिट एक्स्ट्रा फीस। ओके, सो ये पेटेंट का क्लियर हो गया। अगर आपको मैं विद इन हाफ मिनट में रिकैप करवा दूं तो पेटेंटेबिलिटी क्राइटेरिया 3 है, नोवेल्टी है, नॉन ऑब्वियसनेस है, इंडस्ट्रियल एप्लीकेबिलिटी है का ये क्लियर हो गया। उसके बाद आपको फाइल करना है। सो डोंट वेट फॉर योर प्रोडक्शन, योर प्रोटोटाइप इज रेडी। इफ यू हैव योर clear picture, you have your clear idea, then you can file your patent and according to first to file rules। and क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट रहेंगे वो मैंने आपको दिखा दिया है, कौन से फॉर्म्स लगेंगे। सो अगर आपको ऐसा है कि फॉर्म कहाँ से मिलेंगे, आईपी इंडिया की वेबसाइट से आपको फॉर्म्स भी मिल जाएंगे। जैसे आपको गूगल करना है आईपी इंडिया, द फर्स्ट वन वेबसाइट इज आईपी इंडिया वेबसाइट, एंड वहां से आपको फॉर्म्स मिल जाएंगे। उसका टाइमलाइन क्या है और क्या फीस रहेगा। ओके, नाउ नेक्स्ट, कॉपीराइट। कॉपीराइट शायद सबको पता होगा कि कॉपीराइट किसके लिए होता है, और काफी सारे यहाँ पे अगर प्रोफेसर्स है या कोई स्टूडेंट्स है तो उनको पता होगा कि बुक्स के ऊपर कॉपीराइट सी लिखा हुआ होता है। सो कॉपीराइट किसके ऊपर मिलता है? सो कॉपीराइट इज अ टाइप ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी दैट गिव्स ओनर द एक्सक्लूसिव राइट टू मेक कॉपीज ऑफ क्रिएटिव वर्क। कुछ क्रिएटिव वर्क है उसकी कॉपीज बनाने के लिए आपको कॉपीराइट प्रोटेक्शन मिलता है। यूजुअली लिमिटेड टाइम, यहाँ पे भी टाइम लिमिटेड है। अभी कितना है, देन दे इट विल नेक्स्ट, इट विल सी नेक्स्ट स्लाइड। द क्रिएटिव वर्क मे बी लिटरली आर्टिस्टिक, एजुकेशनल और म्यूजिकल फॉर्म, इसके ऊपर मिल सकता है। नाउ कॉपीराइट कैन बी सोल्ड और ट्रांसफर टू अदर्स। सो पेटेंट में भी ये है कि अगर आपने राइट्स ले लिया, आप किसी को ट्रांसफर भी कर सकते हो, किसी को पेटेंट सोल्ड भी कर सकते हो। द सेम वे कॉपीराइट कैन बी सोल्ड और ट्रांसफर टू अदर्स। And all the copyright related works are governed by the Copyright Act 1957। Now जैसे मैंने ऑलरेडी पेटेंट में लिखा बताया कि पब्लिश्ड वर्क पे पेटेंट नहीं मिलेगा, क्वेरीज ज्यादा आएगी, नोन चीज नहीं होनी चाहिए। कॉपीराइट में ऐसा नहीं है, कॉपीराइट में पब्लिश्ड वर्क है या अनपब्लिश्ड वर्क है, बोथ में यू कैन टेक कॉपीराइट्स। किसके ऊपर मिलेगा? लिटरेरी वर्क है, ड्रामेस्टिक वर्क है, म्यूजिकल वर्क है या आर्टिस्टिक वर्क है। नो, कितने टाइम के लिए मिलेगा? सो लाइफ लाइन ऑफ द ऑथर और द आर्टिस्ट एंड 60 ईयर काउंटेड फ्रॉम द ईयर फॉलोइंग डेथ ऑफ ऑथर। सो लाइफ लाइन तक मिलेगा प्लस 60 ईयर फ्रॉम द डेथ ऑफ ऑथर। सो ये हो गया कॉपीराइट। अभी कॉपीराइट शायद एक जनरल अवेयरनेस पे आपको सबको पता होगा कि कुछ म्यूजिक बनाते हैं, कोई फिल्म बनाते हैं तो फिल्म के ऊपर कॉपीराइट मिलता है, कुछ बुक्स लिखते हैं तो बुक्स के ऊपर कॉपीराइट मिलता है। सो हम लोग नेक्स्ट देखेंगे कि ओपन सोर्स चीज क्या है, यूनिवर्सल एक्सेस क्या है कॉपीराइट पे। सो द फर्स्ट पॉइंट इज यूनिवर्सल एक्सेस ऑफ कॉपीराइट टू रिसर्च, एजुकेशनल एंड कल्चर। सो कोई रिसर्च है, कोई एजुकेशनल पर्पस के लिए आप यूज कर रहे हो, सो उसके बेस पे आपको यूनिवर्सल एक्सेस मिल सकता है। नाउ प्रोवाइड अ फ्री, पब्लिक एंड स्टैंडर्डाइज इंफ्रास्ट्रक्चर दैट क्रिएट अ बैलेंस द रियलिटी ऑफ इंटरनेट एंड रियलिटी ऑफ कॉपीराइट लॉ। सो बेसिकली एक ऐसा है कि ओपन सोर्स आपने कहीं पे सुना होगा, ओपन सोर्स चीजें अवेलेबल होती है मार्केट में। सो वेर यू कैन टेक कॉपीराइट बट you can give openly to
use to give openly to public, where we can create a balance. Now, copyright law provides certain ways in which copyright work may be used. अगर copyright work है, उसको कैसे use कर सकते हैं? The first one is fair use होना चाहिए. Now, what is fair use? That we will see with the case study. In a public domain चीज already होनी चाहिए. Library privilege होना चाहिए. And alternative licensing, जिसको Creative Commons भी कहते हैं. So, अगर ऐसा सब है, फेयर यूज है, पब्लिक डोमेन में है, लाइब्रेरी प्रिविलेज मिल रहा है वो कंटेंट पे, अल्टरनेटिव लाइसेंसिंग किया हुआ है, देन यू कैन यूज योर कॉपी अदर्स कॉपीराइट वर्क. नाउ, हैव यू सीन रसोड़े में कौन था? आई कैन सी दैट मेनी स्टूडेंट्स जॉइन हियर एंड सबने आई होप देखा होगा कि रसोड़े में कौन था. ये कुछ मीम्स बना था और मीम्स के बेस पे काफी पॉपुलैरिटी मिली है जो बंदे ने इसको एडिट किया है. सो कैन पार्टिसिपेंट कंफर्म दैट यू हैव सीन रसोड़े में कौन था मीम और नॉट? Okay, I can see many yes, yes, yes. Okay, yes. Okay, so उसको रिकैप कर लेते हैं एक बार फिर से. ओके, सो इसके बेस पे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए. क्या ओपिनियन है आपका? ये जो बंदे ने बनाया हुआ था वो उनका परमिशन के बिना ये कुछ खुद से ही एडिट करके कुछ बनाया हुआ है. सो व्हाट इज योर ओपिनियन? ये पैरोडी है और कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट है? विदाउट परमिशन ये वीडियो या ये मीम्स बनाना, ये पैरोडी है या कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट है? आई एम वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स इन चैट. Okay, infringement, parody. So we have mix combination of the okay, right. Okay, so we have combination of replies that someone says it is a parody or someone says copyright infringement. So now let's pick the case study. Actually क्या है ये? So the IP press उन लोगों ने ये एक केस स्टडी शेयर किया हुआ है नवंबर 23 को, जहां पे ये पूरा केस समझाया हुआ है कि ये क्या है, कौन कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट है, नहीं है तो क्यों नहीं है. नाउ the principle of copyright is that no one has copyright over an idea. There is no copyright on theme, movie plot or subject matter until these are expressed and fixed on some tangible medium. Now,
अगर हम ये केस की बात करें, some clarity has been provided by the court in this regard, that the court has defined that when copyright is done for criticism, its amount of fair dealing does not fall under infringement of copyright. Okay, so there are 3 points that the first one is the quantum and value of matter taken in relation to the comments or criticism. The second one is the purpose for which it is taken. And the third one is competition between two works. Now, you can see that the quantum or value of the matter taken relation for comment or criticism. So यहाँ पे comment and criticism के लिए ही इसको कुछ बनाया था, कुछ fun के लिए बनाया था. सेकेंड वन इज कितना अमाउंट ऑफ ये कंटेंट लिया हुआ है उसके ओरिजिनल कंटेंट के हिसाब से. सो the original episode 67 is 43 minutes and the meme is only taken 56 minutes long, only 56 minutes long, जिसमें भी बंदे ने कुछ ना कुछ अपना क्रिएटिविटी बीच में ऐड किया है. ये पूरा एक साथ कंटेंट नहीं लिया है, कहीं अपना कुछ प्लॉट ऐड किया है, कहीं अपना फील कुछ ऐड किया है, कुछ म्यूजिक ऐड किया है अपना. सो व्हाट इज द कंक्लूजन? कंक्लूजन इज दैट the parody or spoof are contents which are made majorly for entertainment purpose or criticize or review the original content. So you can correlate between the both video. They are considered as a fair use of original work and do not fall under the copyright infringement under the Copyright Act. Now, the creator of the spoof or parody is expected to maintain balance between the review of content and tempering the image of परफॉर्मर. यहाँ पे किसी परफॉर्मर का इमेज टेम्पर नहीं हो रहा है. सो दिस इज नॉट कवर्ड अंडर द कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट. ओके, नाउ द कॉपीराइट वीडियो ऑफ रसोड़े में कौन था डज नॉट कंसिस्ट द कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट as it does not violate section 30C, section 38, 37 and 38B of Act. So it is purely a parody. So ये आपको एक क्लियर हो गया होगा कि आजकल जो भी मीम्स बन रहे हैं, आजकल जो भी वीडियोस एडिट हो रहे हैं, जो भी वीडियोस बन रहे हैं, so those all are not covered under the copyright infringement. अगर infringement copyright हो रहा है तो कैसे कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट होगा? कौन से 3 पॉइंट्स है जो मैंने आपको बता दिया. नाउ नेक्स्ट, ट्रेडमार्क. नाउ व्हाट इज ट्रेडमार्क? क्यों ट्रेडमार्क लाना पड़ा? सो ड्यू टू द डेवलपमेंट ऑफ ट्रेडिंग एंड कमर्शियल एक्टिविटीज एंड ग्लोबलाइजेशन ऑफ बिजनेस, इंडियन गवर्नमेंट हैज अमेंड द ट्रेडमार्क 1958. सो जो भी कॉमर्शियली ग्लोबली बिजनेस ट्रेड होने लगा, फिर एक ऐसा होने लगा कि कुछ खुद का बिजनेस है, कुछ अच्छा कॉमर्शियली वायबल चीज है, सो उसमें आपको अपना कुछ ये आइडेंटिटी दिखाना रहेगा कि ये कुछ मेरा ब्रांड है, तो कुछ ब्रांड दिखाना रहेगा. सो ट्रेडमार्क लॉ वहां पे amendment हुआ. Now the present Trademark Act 1999 has replaced the Trademark and Merchandise Act 1958. So 1958 में जो Trademark Act था जिसको अभी replace किया है Trademark Act 1990 on 15 September, जिसको enforce किया गया है 15 September 2003 पे. Now what is trademark definition? So trademark means a mark capable of being रिप्रेजेंटेड ग्राफिक. सो कुछ मार्क है जिसको रिप्रेजेंट किया है ग्राफिकली, विच इज कैपेबल ऑफ डिस्टिंग्विश द गुड और सर्विस, जो कोई चीज को या कोई सर्विस को आइडेंटिफाई कर रहा है ऑफ वन पर्सन फ्रॉम दोज ऑफ अदर्स, किसी दूसरे सर्विस
से अलग आइडेंटिफाई कर रहा है एंड मे इंक्लूड शेप ऑफ गुड्स दैट पैकेजिंग एंड कॉम्बिनेशन ऑफ कलर। उसका पैकेजिंग है, उसका कॉम्बिनेशन ऑफ कलर्स है, उसके ऊपर ट्रेडमार्क मिलता है। सो बेसिकली एक सिंपल लैंग्वेज में मैं बताऊं तो आपका कंपनी का लोगो है, कंपनी का नाम है, कंपनी का कुछ आइडेंटिटी है, कंपनी के नीचे जो टैगलाइन लिखा हुआ है, दोज ऑल आर कवर्ड अंडर ट्रेडमार्क। नाउ टीएम एंड आर आपने कहीं पे मेजर किया होगा कि कहीं पे टीएम लिखा होता है, कहीं पे आर ऐसे लिखा होता है। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टीएम एंड आर? टीएम इज अप्लाइड फॉर ट्रेडमार्क, आर इज रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क। नाउ व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ ट्रेडमार्क? क्या क्या आप कर सकते हो ट्रेडमार्क के अंदर? आपका नेम सरनेम है जो ट्रेडमार्क होगा, वर्ड ब्रांड है, आपका कुछ वर्ड है जो आपकी खुद की ब्रांड है, आइडेंटिटी है, जैसे गूगल है, इंफोसिस है, एप्पल है, रिलायंस है। सो वो आपका एक ट्रेडमार्क हो गया। उसका लोगो सेम, ऑडी लोगो देख के आपको पता चल जाएगा। सिर्फ ये टिक मार्क लगाया हुआ है, टिक मार्क से आपको पता चल जाएगा कि ये नाइक है। ओके, अमेजोन है, मैकडोनाल्ड है, सिर्फ लोगो पे से सबको आइडेंटिटी हो जाएगा कि ये ब्रांड है, ये ब्रांड इसकी है। नाउ स्लोगन, जस्ट डू इट, द टेस्ट ऑफ इंडिया, अमूल, दाग अच्छे है, दिमाग की बत्ती जला दे। ओके, सो ये स्लोगन पे से, ये टैगलाइन से आपको आइडेंटिफाई हो जाएगा कि ये कौन सी प्रोडक्ट है। सो ये टैगलाइन, ये स्लोगन ट्रेडमार्क के अंडर रजिस्टर हो सकता है। लेटर न्यूमेरिक्स, कुछ लेटर है आपके, कुछ न्यूमेरिक्स है जिसको आप ट्रेडमार्क के अंडर एज ए लोगो भी रजिस्टर्ड कर सकते हो। नाउ द सिंबल और डिवाइस कुछ है, उसको भी आप ट्रेडमार्क करवा सकते हो, जहां पे सिर्फ सिंबल के बेसिस पे ही आपका ब्रांड ब्रांड आइडेंटिफाई होगा। कॉम्बिनेशन ऑफ कलर्स, फोटो पैकेजिंग, आपका कुछ फोटोज है, पैकेजिंग पे कुछ आपको ट्रेडमार्क लेना है, उसके ऊपर भी आप ले सकते हो। शेप ऑफ गुड ट्रेड ड्रेस, सो फॉर एग्जाम्पल ये चॉकलेट है, चॉकलेट का ये बार है जिसका कुछ यूनिक शेप है, अलग शेप है। अगर आपका खुद का आइडेंटिटी है ये बार का शेप, तो भी आप उसको ट्रेडमार्क में रजिस्टर्ड कर सकते हो। नाउ द इंटरेस्टिंग थिंग्स, सिग्नेचर, सचिन तेंदुलकर का सिग्नेचर, शाहरुख खान का सिग्नेचर है, जिसको आप ट्रेडमार्क ऑलरेडी है, और आपका खुद का सिग्नेचर भी आप ट्रेडमार्क करवा सकते हो। नाउ यहाँ पे सबको कंफ्यूजन होता है कि सिग्नेचर क्यों ट्रेडमार्क करवाने का? सिग्नेचर तो खुद का वैसे भी आइडेंटिटी होता है, अब उसको प्रोटेक्ट क्यों करना है? सो नेक्स्ट, क्यों प्रोटेक्ट करना है सिग्नेचर? क्योंकि सचिन तेंदुलकर, शाहरुख खान इटसेल्फ अ बिग ब्रांड, वो काफी अलग अलग ब्रांड को रिप्रेजेंट करते हैं। सचिन तेंदुलकर काफी बैट्स की एडवर्टाइजमेंट करता है, शाहरुख खान का ये काफी ब्रांड की एडवर्टाइजमेंट करता है। नाउ सचिन तेंदुलकर फॉर एग्जाम्पल ए ब्रांड की बैट को एडवर्टाइज कर रहा है, जो ब्रांड एम्बेसडर है, जो कंपनी काफी सारे बैट्स ऐसे सेल कर सकती है कि हमारे बैट पे सचिन तेंदुलकर का सिग्नेचर मिलेगा, आप बैट परचेज करो, सचिन तेंदुलकर के सिग्नेचर वाला बैट मिलेगा। नाउ अगर ये ट्रेडमार्क में रजिस्टर्ड नहीं है, तो कोई भी कुछ भी सिग्नेचर में थोड़ा चेंज करके या सेम सिग्नेचर को अपने कंपनी के बैट पे लगा के सेल कर सकता है, अगर प्रोटेक्टेड नहीं है तो। सो योर आइडेंटिटी एज योर सिग्नेचर यू कैन प्रोटेक्ट एज अ ट्रेडमार्क। सो आई होप ट्रेडमार्क क्लियर होगा आपके दिमाग में कि ट्रेडमार्क किस किस चीज पे लिया जा सकता है, कहाँ मिल सकता है। और अगर मैं आपको टाइम पीरियड बोल दूं तो ट्रेडमार्क इज नॉट अ लिमिटेड टाइम फॉर ट्रेडमार्क। आपको उसको हर साल या कुछ लिमिटेड टाइम पीरियड्स के बाद रिन्यू करना रहेगा। जितने साल तक आपने रिन्यू किया, रिन्यूअल फीस भरी, रिन्यूअल सबमिशन किया, तब तक आपका ट्रेडमार्क चलेगा। जब आपने रिन्यू नहीं करवाया, देन योर ट्रेडमार्क इज नॉट इन अंडर प्रोटेक्शन। नाउ व्हाट इज इंडस्ट्रियल डिजाइन? अगर केवल ने इंट्रोडक्शन में शायद मेरा पहले ही बताया कि मेरे पास
इंडस्ट्रियल डिजाइन या डिजाइन एप्लीकेशन है जहाँ पे मैंने 6 एप्लीकेशन फाइल की है और ऑल एप्लीकेशंस आर ग्रांटेड। द नेक्स्ट केवल ने बताया कि 18 प्लस डिजाइन एंड पेटेंट फाइल है। सो व्हाट कवर्स अंडर द इंडस्ट्रियल डिजाइन? इंडस्ट्रियल डिजाइन क्या है? सो इंडस्ट्रियल डिजाइन को डिजाइन एप्लीकेशंस भी कहते हैं और डिजाइन भी कह सकते हैं। नाउ काफी बार आप लोगों ने सुना हुआ डिजाइन पैटर्न। व्हाट इज डिजाइन पैटर्न? सो डिजाइन पैटर्न इज नॉट अ by law right word in India, but yes, out of India there are category in Europe or USA or China. There are one category that covers under design pattern. Now यहाँ पे इंडिया में उसको इंडस्ट्रियल डिजाइन या डिजाइन एप्लीकेशंस के नाम पे बाय लॉ आप बुला सकते हो, आइडेंटिफाई कर सकते हो। नाउ व्हाट इज डिजाइन? सो डिजाइन इज कवर्ड अंडर एक्ट 1911 जिसको अमेंड किया गया है डिजाइन एक्ट 2000 एंड डिजाइन रूल्स 2001। सो उस कहाँ पे मिल सकता है आपको? क्रिएटिव एक्टिविटी पे मिल सकता है। विजुअल अपीयरेंस ऑफ अ प्रोडक्ट, आपका कोई एक प्रोडक्ट है, फॉर एग्जांपल ये मेरा माउस है। सो ये माउस का विजुअल अपीयरेंस क्या है? मेरे को यहाँ से कुछ शेप दिख रहा है जो मेरे को ग्रिप के लिए अच्छा रहेगा। कुछ मैंने माउस बनाया मेरी कंपनी के नाम पे, फॉर एग्जांपल ध्रुव के नाम पे डी है, मैंने कुछ डी शेप में माउस बनाया अलग मेरा। सो दोज ऑल आर विजुअल अपीयरेंस कवर्ड अंडर इंडस्ट्रियल डिजाइन। सो किस पे मिल सकता है? 2D पे भी मिल सकता है, 3D डिजाइन पे भी मिल सकता है, और मेड बाय इंडस्ट्रियल प्रोसेस। नाउ व्हाट कैन बी रजिस्टर्ड अंडर डिजाइन, व्हाट कैन नॉट बी रजिस्टर्ड अंडर डिजाइन? और ओरिजिनल डिजाइन होना चाहिए, ऐसा नहीं कि किसी और का है और आपने उसको कर दिया है। जैसे फॉर एग्जांपल कोई एक ऐसी चीज है जो ऑलरेडी अवेलेबल है और आपने उसको कुछ डिजाइन में कन्वर्ट करके फिर आपने डिजाइन फाइल कर दिया। नहीं, डिजाइन विच ओरिजिनल होना चाहिए। डिजाइन विच इज नॉट न्यू सच एज ओरिजिनल एंड न्यू इन एप्लीकेशन। सो अगर फॉर एग्जांपल कोई चेयर का है, चेयर चेयर न्यू नहीं है बट उसकी एप्लीकेशन न्यू है, कुछ आपने उसको अपीयरेंस ऐसा दिया है, शेप ऐसा दिया है जो नया है, so that can be covered under design. Now not registered in any country, कहीं पे भी रजिस्टर्ड नहीं होना चाहिए। what cannot be registered? कॉपीड डिजाइन, जैसे मैंने ऑलरेडी ओरिजिनल डिजाइन में कवर किया। सिमिलर टू अ डिजाइन विच इज ऑलरेडी एग्जिस्ट ऑलरेडी हो गए, उसको नहीं कर सकते। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, नाउ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस क्यों डिजाइन नहीं हो सकता? क्योंकि ऑलरेडी इट कैन बी कवर्ड अंडर पेटेंट, जहां पे प्रोसेस पेटेंट आप जा सकते हो। आइडियाज है, आइडिया आपका नहीं होगा डिजाइन प्रोटेक्शन। और फंक्शनल फीचर ऑफ एन आर्टिकल, अब फंक्शनल फीचर है वो कवर नहीं होगा, क्यों? क्योंकि इट कैन बी कवर्ड अंडर पेटेंट। ओके, सो अगर मैं आपको फिर से डिजाइन का क्लियर दे दूं, एक सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको डिजाइन क्लियर कर दूं। मैं ये जो चेयर पे बैठा हूँ, एक सिंपल चेयर भी आ सकती है, कोई अलग अलग शेप में भी चेयर आती है। अब मैंने कोई ऐसा शेप बना दिया जो मेरे बॉडी के हिसाब से फिट हो रहा है और जो मेरे को रिलैक्स दे रहा है, बैठने के लिए मेरे को कुछ अलग फील कर रहा है और मेरा बॉडी पोस्चर सेम अच्छा रहेगा वो चेयर के डिजाइन के हिसाब से। सो ये आपका पेटेंट तो नहीं होगा, तो क्या होगा? ये आपका डिजाइन होगा, क्योंकि वो लुक अपीयरेंस पे आपको कुछ अलग आइडेंटिफाई कर रहा है। ओके, नाउ एग्जांपल के हिसाब से हम लोग देखें तो आपको ज्यादा आइडिया रहेगा। कंज्यूमर प्रोडक्ट, छोटी कंज्यूमर प्रोडक्ट में भी आपको डिजाइन फाइल हो सकता है। जैसे पेन का कोई डिजाइन है जिसमें अच्छा ग्रिप मिल रहा है, अच्छा फीचर्स आ रहा है। जैसे कोई क्लॉक की डिजाइन है, आपके शू की डिजाइन है, या टूथब्रश है, कॉम्ब है। अगर यहाँ पे आप कैची देख रहे हो जिसमें एक में राउंड है, एक में कुछ और ही शेप दिया हुआ है, सो दैट कैन बी कवर्ड अंडर डिजाइन। नाउ द सेकंड वन, ब्रश। हम लोग हर रोज सुबह पहले ब्रश करते हैं। नाउ
Can you imagine that brush, a single brush is protected 100 plus designs. अगर आप आईटी इंडिया में भी सर्च करोगे सिर्फ टूथब्रश या ब्रश, so you can identify 100 plus registered design in just toothbrush. So वो कैसे अलग अलग होता है? So आप यहाँ पे देख सकते हो, टंग क्लीनर वाला है, कोई और शेप दे दिया है, इसको मैंने यहाँ से कुछ अलग ही दे दिया, एकदम अलग शेप में ब्रश दे दिया है। सो यहाँ पे मेरे को बीच में कुछ ऐसा अलग डिजाइन कर दिया है जिस फ्लेक्सिबिलिटी मिल रही है मेरे ब्रश में। यहाँ पे कुछ और मैकेनिज्म कर दिया है जिससे मैं उसको ब्रश को मोड़ सकता हूँ बीच में से। सो दिस ऑल आर कवर्ड अंडर योर यूनिक डिजाइन, योर डिजाइन प्रोटेक्शन। सेम फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स के लिए भी अलग अलग फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स है जिसके ऊपर भी आपको विजुअल अपीयरेंस पे आपको डिजाइन प्रोटेक्शन मिलता है। मैंने कुछ इंजेक्शन बनाया है जिसमें कुछ अलग डिजाइन है, एक और इंजेक्शन है जिसमें कुछ अलग डिजाइन है। सो दिस ऑल आर कवर्ड अंडर डिजाइन प्रोटेक्शन। टेक्सटाइल एंड ज्वेलरी, ये सब हो गया 3D अपीयरेंस पे। ये आया टेक्सटाइल एंड ज्वेलरी, टेक्सटाइल 2D अपीयरेंस पे है। सो आपका कोई अलग सा ही डिजाइन है, अलग सा ही कुछ ऐसा शेप है जो आप टेक्सटाइल पे प्रिंट उसको प्रोटेक्ट करवाना चाहते हैं, सो देन यू कैन कवर्ड अंडर डिजाइन राइट्स। और फॉर द टेक्सटाइल ज्वेलरी के लिए भी आप अलग अलग प्रोटेक्शन ले सकते हैं, पर याद रखना है कि खुद का कुछ नया डिजाइन होना चाहिए, कुछ नया लुक, नया अपीयरेंस होना चाहिए। नाउ ये हो गया हमारा ऑल दी राइट्स, मेजर राइट्स ऑफ आईपी, क्योंकि आईपी में और भी कवर्स होता है जैसे ट्रेड सीक्रेट है और प्लांट वेराइटीज है। सो आर also covered under the intellectual property rights, but the major 4 IPs, copyright, patent, trademark, design, which already we covered. अगर आपको अभी भी कुछ डाउट है किसी में, so then you can always ask in your chat box. अगर कुछ अभी पता नहीं चल रहा है, so you can ask in chat box. क्विक रिकैप कर लेते हैं। ये एक ही स्लाइड में आपको सब समझ आ जाएगा क्या किस पे प्रोटेक्शन मिलता है, अलग अलग क्यों अलग अलग राइट्स दिया हुआ है। आपका कोई आइडिया है, उसको आप एक्सप्रेस कर रहे हो, अ वे फॉर्म ऑफ रिटन एक्सप्रेस, म्यूजिकल एक्सप्रेस, योर फिल्म, योर वीडियोग्राफी एक्सप्रेस, जो एक्सप्रेशन है वो कॉपीराइट में प्रोटेक्शन होगा। आपका कोई इनोवेशन है, इन्वेंशन है, कुछ फंक्शनल फीचर्स है, आप पेटेंट रजिस्टर्ड करवा सकते हो। का आइडिया है जिसके ऊपर क्वालिटी प्लस आइडेंटिटी है, कुछ क्वालिटी है प्लस आपका खुद का ब्रांड है, आइडेंटिटी है, आप ट्रेडमार्क रजिस्टर करवा सकते हो। अपीयरेंस, लुक, आपका कुछ अलग शेप, डिजाइन, उसके ऊपर आप डिजाइन रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो। सो ये अलग अलग 4 चीज क्यों है, क्योंकि आपका आइडिया किस फॉर्म में है, वो फॉर्म के बेसिस पे आपको कौन सा आईपी में जाना रहेगा, ये यहाँ पे मिलेगा। नाउ नेक्स्ट आइडिया, अगर कीप कॉन्फिडेंशियल, नो डिस्क्लोज को ट्रेड सीक्रेट। ट्रेड सीक्रेट का मैं थोड़ा यहाँ पे आपको इलेबोरेट कर दूं। आप लोगों ने सब लोगों ने ये सुना होगा कि कोको कोला की रेसिपी है, कोको कोला की रेसिपी कहीं पे बाहर डिस्क्लोज नहीं हुई है। सो अगर मैं उसको पेटेंट में रजिस्टर करवाता, कोको कोला कंपनी उसको पेटेंट में रजिस्टर करवाती, देन इट हैव सम 20 इयर्स ऑफ राइट्स। वो पब्लिक डोमेन, पब्लिश होने के बाद पब्लिक डोमेन में भी कहीं ना कहीं उसका कुछ पार्ट आ जाता कि इसको कैसे बनाया है। नाउ द अदर कॉम्पिटिटर्स कैन मॉडिफाई समथिंग विच कैन नॉट कवर्ड अंडर द प्रोटेक्शन राइट एंड खुद का कुछ अलग बना सकते हैं। नाउ मुझे ऐसा करना ही नहीं है, देन आई कैन गो फॉर ट्रेड सीक्रेट, जहां पे मेरा सारा चीज कॉन्फिडेंशियल रहेगा, कहीं पे डिस्क्लोज नहीं होगा फॉर नो टाइम पीरियड। आपको एनडीए, नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट के थ्रू ही यहाँ पे वर्क करना रहेगा। ट्रेड सीक्रेट का सबसे मेजर डिसएडवांटेज ये है कि अगर आपने एनडीए के थ्रू कहीं पे डिस्क्लोज नहीं किया है, फॉर एग्जांपल एक सिंपल एग्जांपल ले रहा हूँ,
कि तब वन कंपनी हैज ए टू पार्टनर्स नाउ, दोनों के बीच में कुछ एग्रीमेंट नहीं हुआ है ट्रेड सीक्रेट के रिगार्डिंग, एंड वन पार्टनर लेफ्ट द कंपनी एंड वो खुद अपना बना रहा है द सेम थिंग विच कवर्ड अंडर ट्रेड सीक्रेट. सो अगर एनडीए के थ्रू डिस्क्लोज नहीं हुआ है, वो प्रोटेक्ट नहीं हुआ है, सो योर आइडिया विल बी रिवील. वो कोई भी यूज कर सकता है. एक बार मार्केट में चला गया तो पब्लिश हो गया, देन यू हैव नो राइट्स कि आप उसको काउंटर कर पाओ. ओके, so thank you team Ignite for supporting in technically and all the form. Thank you Ignite for inviting me as a today's speaker on our topic. Thank you all participants for joining and patiently listen to me. So if you have any question, you can always ask in a chat box. If you have any doubt, you have any query, you can contact to Keval or any person from Ignite, and we'll surely help you in all the possible manner. Yeah, thank you, Dhruv, for accepting our invitation and being the speaker for today's session. And now we at Ignite will soon start some event regarding IPR, and we will also open our portal for patent filing. So you all can follow us on our all social media platforms. We Team Ignite is active on all platforms: Facebook, Instagram, LinkedIn, YouTube, Twitter. There you can follow us. Soon you will see. Yeah, you can find the link of all our social media portals on your screen. So thank you all for joining. Thank you, Dhruv, for being such a wonderful speaker. It was nice to hear so many things about this patent and the different scope of copyrights and trademark and all other possibilities. Hope you all enjoyed the session, and for any further query, you can contact us on our on any social media platform, and we will revert back to you within 48 hours. Thank you all for joining. Have a nice day. Yes, thank you, Keval.